एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हार्ट एंड होम जर्नी। अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मायरा भी स्कूल से आ चुकी है और क्यारा को अभी फीवर हुआ है। जस्ट अभी मैंने चेक किया तो उसको 100 फीवर है और डॉक्टर से भी बात हुई है। तो आज डॉक्टर का ऑफ है तो उन्होंने सजेस्ट किया कुछ मेडिसिन, तो वो मैंने दे दिया उसको। और यहाँ पे मायरा अपनी ड्राइंग कर रही है और क्यारा अपना टीवी देख रही है। मैं दिखा वो क्या कर रही है। और यहाँ पे मायरा हैंड में क्या है आपके? What's in your hand? What's in your hand? ये स्टिकर्स बाहर जाके go outside and stick these stickers on your notebook. आजकल मायरा क्या कर रही है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम ईमा है, उसके स्टिकर्स बना के वो हर जगह चिपका रही है। जहाँ पर स्टिकर्स नहीं चिपक रहे हैं वहाँ पे लिख रही है। उसने हर बेडशीट पे, हर पिल्लो कवर पे, विंडो पे, टेबल पे, हर चेयर पे उसने एमा नाम लिखा हुआ है। और हम रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, पर वो जा नहीं रहा है। और इसलिए हम उसको काफ़ी उस पर नज़र रखते हैं कि अब वो दोबारा कुछ और चीज़ें ना ख़राब करे, तो बार बार उसको चेक ज़रूर करते हैं। तो ये अभी लंच टाइम हुआ है, मैं दोनों को लंच बना के दे रही हूँ। अभी देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, और बच्चों से भी पूछूंगी क्या खाना है तो मैं बनाती हूँ उनके लिए। और यहाँ पे बच्चे फ्रिज में तामझाम कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ भी चॉकलेट्स कैंडीज होती है फ्रिज में छुपाती हूँ, और पर आज नहीं मैंने छुपाई। कैंडीज फ्रिज में मैंने नहीं छुपाई। ये मैं क्लीन करती हूँ, ये वाली चॉकलेट ना मैं क्लीन कर देती हूँ। With bread? No, I will make pancake if you want. I want pancake. I want chocolate. Kara, you want to speak something? Yeah. Yes, आपने स्पीकर लगाया हुआ, क्या बोलना है? माइक लगाया हुआ, बोलो। Okay. आपका फीवर कैसा है ये बताओ पहले। फीवर अभी भी है, you should take rest. Okay? So I got 104 fever. Oh my god, I have 104 fever. No, Myra, give. Maya, no! No! Don't eat chocolate. No. You'll be coughing. Okay, I'll give you. Make bread. Okay, bread, and then I will spread this. Only this. Okay? Okay, also make it for me. Yes, I will make for you also. You want bread? Yeah. You don't want to eat pronti? After bread, give me pancake. After bread, you want pancake. Okay, if you eat this chocolate, you will get cough. If you get cough, then you will have to take injection from the doctor. Are you ready for the injection? I'm not scared of injection. If you eat this chocolate, okay? Chocolate is fine. I'm not scared of injections. Okay, you're not scared, but if Myra eat chocolate, teeth will get dirty, there will be cavity, then you will get injections. Are you ready? No. If you have dirty teeth, you have to brush your teeth. No, brushing is not enough now because she's eating chocolates. If she eats chocolate, she's coughing so much, then go to the doctor, then put the injections. बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, उनको बोला कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाना। In the back. चलो मैं देती हूँ उनको। Mom, welcome guys to my channel. So we're gonna do lunch. So it's gonna get ready. Let's go. तो जी अब मैं बनाना चाह रही हूँ पैनकेक बनाना मुझे बहुत पसंद है बच्चों के लिए, क्योंकि हेल्दी ऑप्शन है। इसमें 2 एग जाना है, बाकी रेडीमेड मेरे पास इसका मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो फटाफट मैं बनाती हूँ इन बच्चों के लिए। What is in your hand? Food? Show me. Which food? Tell me the name of the food. Okay, you have French fries. Wow. And this is the juice. And this is a pizza. Okay. Or this is the coffee. Okay. Put here on the table. I will eat. So this is the pizza. Okay. This is juice. Yeah. Okay. Oh, this is juice and this is juice. This is juice. Put it on the table. You'll eat it at the seat. Okay. And these are French fries.
Very yummy food. You want more? Yes, I want more. I'm very hungry now. Pizza and waffle. Pizza and waffle. Wow, that's good. So I'll eat everything. Okay. Bye. Bye. ये मिक्स आ गया पैनकेक का मिक्सचर. मिल्क. Maya, this is for you. You will not get any more chocolate because you have already eat too much. So no more chocolate. You will eat like this. It's on without chocolate. Is that fine? You're not eating with chocolate? Nice. So काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हम अपने बच्चों में जो शुगर क्रेविंग्स है उसको कैसे लिमिट करते हैं. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी टाइम से इस बारे में पूछ रही थी और मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए. तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करते हैं घर पे बच्चों के साथ ताकि उनकी शुगर क्रेविंग हम लिमिट कर सकें. तो पहले तो शुगर क्रेविंग होती क्यों है? देखो, जैसे अपने यहाँ पे फेस्टिवल्स इतने होते हैं, लोहड़ी होगी, दिवाली होगी, तो उन सब फेस्टिवल्स में स्वीट्स ही चलती हैं. तो बच्चों को देख के उसकी क्रेविंग होती ही होती है. और सबसे मेन रीज़न कि जैसे आपको भी पता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले हनी चटाया जाता है. हाँ, तो इस वजह से भी हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस है, कुछ सेलिब्रेशंस हैं तो हर चीज़ मीठे के साथ जुड़ी हुई है. गणेश चतुर्थी आती है तो लड्डू चाहिए, लोहड़ी आ रही है तो गच्चे की रेवड़ी होनी चाहिए. हाँ. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मीठा तो आएगा ही आएगा. राखी हो गई, सेलिब्रेशन तो मीठे के साथ ही चलती है. हाँ. जिस वजह से बच्चों में क्रेविंग तो बढ़ जाती है. हाँ. तो हम क्या स्टेप लेते हैं ताकि हमारे बच्चों में क्रेविंग्स कम हो. तो मैं सबसे पहले तो उनको ज्ञान नहीं देती हूँ. सबसे पहले तो ज्ञान सही बात है कि नहीं खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी होती है हेल्थ के लिए. मैं कुछ नहीं बोलती उनको. और बच्चे उसके उल्टा ही चलते हैं. उल्टा ही चलेंगे. जिस चीज़ के लिए रोकेंगे वो ऑपोजिट ही करेंगे. हाँ, तो मैं ज्ञान नहीं बांटती हूँ. सबसे पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं खुद मीठा खाना बंद कर दूँ. हाँ. अगर मैं खुद खाती रहूँगी उनको मैं मना कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरे को ही फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले तो एक दो चीज़ ये सबसे पहले मैं खुद मीठा बंद करती हूँ. दूसरा मैं ज्ञान नहीं देती हूँ. और उसके बाद एक और जो चीज़ है, बैलेंस डाइट में हम लोग ज़्यादा प्रोटीन देने की हाँ, कोशिश करते हैं. प्रोटीन क्योंकि अगर डाइट में ज़्यादा प्रोटीन होगा तो शुगर क्रेविंग और ऑब्वियसली कम ही होगी. सही. और कोशिश ये करते हैं ना कि यहाँ पे घर पे हम चॉकलेट्स वगैरह कम लाएं. हाँ. और जो गेस्ट्स आते हैं उनको भी कोशिश करें कि वो चॉकलेट्स कम लाएं. फ्रूट्स और लेके आए उसके सामने हम हाँ. रखते हैं एप्पल्स और बनानास, जिस वजह से कि बच्चों को जब भी कुछ दिल करे तो वो ये वाला मीठा खाएं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है. क्योंकि अगर सामने चॉकलेट्स पड़ी होंगी वो हमेशा चॉकलेट्स ही खाएंगे, फ्रूट्स तो कभी भी नहीं खाने वाले. तो बेस्ट है कि हाइड करके रखते हैं. और मैं मोस्टली उनके जब भी वो सो जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो मैं हाइड करती हूँ उनसे ताकि उनको पता ही ना चले कि कौन सी प्लेस पे मैंने रखा है. तो और उनकी शुगर क्रेविंग तो होती है, उनको मतलब रोकने के लिए कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा डे रखते हो कि जब उनको थोड़ी बहुत शुगर आप दे भी सको? हाँ, नहीं मैं संडे को जरूर कोशिश करती हूँ. जैसे हलवा बना दे संडे को या मीठी सेवियां बना दी. और एक डे तो मैं रखती हूँ ताकि अगर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना, वरना वो तो बिल्कुल जरूरत है बॉडी की. वो बॉडी की जरूरत है. वरना हमें सुनेंगे ही नहीं. हमें अवॉइड करना शुरू कर देंगे कि इतना रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो हमारे साथ. ना कैंडीज ना चॉकलेट्स. तो एक दिन तो मैं जरूर रखती हूँ. और एक और कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि जब भी मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो उनको अपने साथ नहीं लेके जाती हूँ. क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में अगर मैं जाऊँगी वो तो मीठा ही उठाएंगे ना, चॉकलेट्स कैंडीज उनके सामने आएंगी. तो वो तो मैं नहीं कर सकती. ये सबसे मेन रीजन है कि बच्चों को लेके ही नहीं जाना चाहिए. तो उनको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ चॉकलेट्स दिखेंगी और वो हमें भी कुछ नहीं लेने देंगे. सही, बिल्कुल सही है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं. और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जो भी गेस्ट हमारे घर पे आते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हमारे घर में अगर मीठा लेके आना तो फ्रूट्स लेके आओ, चॉकलेट्स मत लेके आओ. चॉकलेट्स हमारे सामने मत रखो, क्योंकि बच्चे खाना खाने के टाइम पे अगर चॉकलेट सामने आएंगे ना वो चॉकलेट्स ही खाएंगे. तो ये कुछ चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे बच्चों को शुगर क्रेविंग कम हो. कि बच्चों के सामने हम आइसक्रीम कम खाएं जिससे उनको दिल करे खाने का. तो ये कुछ चीज़ें जो हम फॉलो करते हैं उनके साथ ताकि उनको लिमिट कर सके शुगर क्रेविंग्स.
और एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको दिख सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, right. तो भाभी के साथ मैं यही डिस्कस कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ उनके साथ, और कल इनकी वापसी है, कल जा रहे हैं ये घर इंडिया। वापस इंडिया। हाँ ठीक तो है। इसने हमें भी मना किया था बच्चों के लिए कोई चॉकलेट्स मत लेके आना, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए चॉकलेट्स कम लेके आएं और उनको संडे के दिन ही हम चॉकलेट्स खिलाएं बस। थैंक यू। आज हमने डिस्कस किया कि शुगर क्रेविंग्स बच्चों में कैसे कम करी जा सकती है। बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करके कि अगर आज खाओगे तो ज़्यादा चीनी खाओगे तो कल आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, कैविटी होगी, इंजेक्शन भी लगेंगे। इस कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर रहो। तो कॉन्सिक्वेंसेज भी उनको हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, कुछ मूवीज़ दिखाते रहेंगे, कुछ एड्स दिखाते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो जरूर सीख जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे हार्ट एंड होम जर्नी को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी मैं कल आपको अगले व्लॉग में। गुड नाइट। The next day. टाइट हगे कर दे, टाइट What to say? Thank you. चलो। बाय। बाय। जल्दी आना। चलो ओके भैया, बाय।